हैं। सामने अंकुर सिंह जिन्होंने कल अपनी टीम को ट्रायंगुलर सीरीज में विजेता बनाया और उनके सामने एक चुनौती भी रहेगा बाद में बल्लेबाजी करने का, क्योंकि मैदान पर घास, विकेट पर घास है तो थोड़ा सा मैटर जरूर करेगा। तो आइए कमेंट्री बॉक्स में मैं अभिषेक शानू और मेरे साथ एक बार फिर से ओसामा। Salam, Namaste, Sat Sri Akal, Adab, and a very warm welcome to each and every individual present over here at the stadium of Lal Bhai Contractor. And to all the viewers who are watching this game live through every YouTube channel, we have the telecast of SkyExchange.net presents the 10 Premier League Season 4 powered by Petroman. A very big game, a very close encounter, crucial contest coming in. First runs onto the board, nicely played and slashed it hard towards the point region for a boundary. What a start, a dream start to them. चलिए इसी के साथ यहाँ पर एक ड्रीम स्टार्ट तो करी है। बल्लेबाज के हौसले बुलंद और ये आवाज बता रही है, ये अंदाज बता रही है इस टूर्नामेंट की खूबसूरती को। एक बार फिर से तैयार होंगे बल्लेबाज सामने, बाएं हाथ के बल्लेबाज के सामने बाएं हाथ का गेंदबाज। Again a beautiful shot, this time towards the mid-wicket region. Went for a single, want to take a couple, but no, he can only be satisfied with that single. A great start to this team. Smart Chand Royal 11 taking on Petroserv International. Smart Chand Royal 11 have won the toss, selected to bat first, and what a start they have received here. Right hand, left hand combination on the crease. Beautiful delivery this time, just placed it towards the short covers region. Anil Patel, he's off the mark now. This is going to be a very interesting contest, Abhishek, because we have floodlights on here and dew could be the factor. And what do you believe that what could be the right score onto the board to defend it? बिल्कुल ड्यू फैक्टर अब यहाँ से मैटर करेगा, लेकिन अब एक सही स्कोर की तरफ तो बढ़ना पड़ेगा, एक बड़े स्कोर की तरफ तो बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस टीम में वो मादा है, वो क्षमता है, वो कैपेसिटी है। फिलहाल देखिए, जोशो करो उसको देखिए, उन्माद देखिए, उत्साह देखिए इस मैदान पर जिस तरह से चीजें लगातार चल रही है। और यहाँ पे ये देखना दिलचस्प रहेगा क्या 80-90 के स्कोर पर बढ़ पाती है कि नहीं टीम यहाँ से। Yes, indeed, we have seen a couple of teams crossing that benchmark of 90 today, but this is going to be a very interesting scenario where Smart Chand Royal 11 opted to bat first. Can they, go for a record-breaking score in this game? Nicely played, just giving the direction towards the gully region. A quick single taken on that occasion. Beautiful piece of running between the wickets. What exactly matters when you go for such quick singles is your understanding, your communication with your partner. अब यहाँ से थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि रनिंग बिटवीन द विकेट में कितना ज़्यादा कम्युनिकेशन रहता है, किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। लगातार देखिए, अगर हमने देखा है आज के मुकाबले के अंदर भी लगातार हाना में गलतफहमी भी हुई है और विकेट भी गए टीम को, तो इससे बचना होगा, इससे लगातार टीम को बातचीत करनी पड़ेगी और उसके साथ साथ दोनों बल्लेबाज जो क्रीज पर हैं उनको तो आपस में बातचीत करते रहनी चाहिए। Change of field coming in for Jenish Patel. A reverse sweep this time, completely beaten up. Great start to Smart Chand Royal 11 after the completion of very first over. Score moves on to 8 for none. पहले ओवर के बाद स्कोर है 8 रन और अब
New bowler comes in, Sultan Khan, the king of swing. This is going to be a very interesting contest between Anil and Sultan. A very well experienced bowler. Beautiful delivery, what a start, a great pace indeed. Pitching the deck really hard. You're also getting the extra bounce on that occasion. He's a quality bowler, promising talent that he concedes within him. Sultan Khan, a very well-known player. Beautiful delivery this time, high up in the sky. Fielder coming underneath it, and it's been what a catch! What a tremendous catch! First wicket gone, first blood drawn by Sultan Khan. और जब टॉस का समय हुआ था, टॉस का सिक्का उछला था, तो स्मार्ट चेन रॉयल 11 के कप्तान ने टॉस जीता और कहा मैं पहले बैटिंग करूंगा। और उनके दोनों बैटर, दोनों सलामी बल्लेबाज आए थे, लेकिन अब यहाँ पे वापस तो भेज दिया है सुल्तान खान ने। सलामी बल्लेबाज में से एक बल्लेबाज को पवेलियन की राह दिखाई है, लेकिन अब यहाँ से कैसी गेंदबाजी करेंगे। सुल्तान खान को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। टीम को किस तरह से अब वो आगे बढ़ाएंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। और दूसरे तरफ जो आपके सामने टीम है, पेट्रोसर्व इंटरनेशनल, जिसको लीड कर रहे हैं अंकुर सिंह। Yes, exactly. Ankur Singh brought in Sultan Khan for the second over, and he lived up to the expectations of his captain. Again, a beautiful delivery, pitching the deck really hard. Good letter. What an amazing fielding effort that was. Direct hit could have done the damage. Ankur Singh, the captain himself, man in action. Beautiful piece of fielding work. Your bowling department gets the confidence when you have such a fielding unit in your side, isn't it, Abhishek? बिल्कुल, अभी तक जिस तरह से फील्डिंग हुई है, काफी कमाल का एफर्ट दिखाया है, काफी कमाल का एफर्ट दिखाया है। अगर आप फील्डिंग से इस तरह का एफर्ट दिखाएंगे, बॉलर को एक सुकून मिलेगा, लेकिन सुकून मिला है यहाँ पर बल्लेबाज को। दत्तर आती हुई गेंद बाउंड्री के पार, जोड़ी एक और चार। बड़े खूबसूरत अंदाज में, बड़े निराले अंदाज में। मैदान पर जोश आप देख सकते हैं, जज्बा देख सकते हैं, जुनून देख सकते हैं। जब आप इन तमाम चीजों का सामंजस्य देखेंगे तो आपको सुकून देगा, सुकून देगा ऐसी बल्लेबाजी। उस लाइन को, लेंथ को पिक करके जो ये चौका लगाया, वो अविश्वसनीय, वो अप्रतिम, अद्भुत। और जैसा कि हमारे स्कोरर बता रहे हैं, जेनिस का ये होम विकेट है और उसका भरपूर लुत्फ लेते हुए, और इनके तमाम दोस्त भी लगातार इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और ये चीज देखने को मिलता है, जब आपको सपोर्टर्स, आपके दर्शक इस तरह से प्लेयर्स को चीयर्स करें, तो उसका मजा कुछ और ही है ओसामा भाई। यहाँ पर जैसे कि हम बात कर रहे थे, सुल्तान खान एक बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है, आते ही सफलता दिलाई थी अपनी टीम को, लेकिन उसके बाद जेनिश पटेल ने
जो धावा बोला है उन पर, 2 बैक टू बैक बाउंड्रीज लगाई हैं और पूरा प्रेशर जो बन रहा था उसको रिलीज किया। लोकल बॉय जेनिश अपने होम ग्राउंड पर खेलते हुए बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस मैदान का पूरा उपयोग लेते हुए यहाँ पर गेंदबाजी में परिवर्तन किया है। ऐश्वर्या सुरवे को गेंद सौंपी है अंकुर ने और कलाइयों का उपयोग किया, दिशा दिखाई उसे शॉर्ट फाइन लेग के क्षेत्र में 1 रन आसानी के साथ बनाने में कामयाब। स्ट्राइक पर आए हैं अकरम बोनी, नाम है इनका बोनी, लेकिन काम करना होगा आज धोनी का। तीसरा ओवर चलता हुआ 19 पर 1। जैसे कि हम बात कर रहे थे इस मैच की शुरुआत पर कि 2-3 टीमों को हमने देखा है आज यहाँ पर 90 रन बनाते हुए। जिस हिसाब की यहाँ पर शुरुआत मिली है स्मार्टचेन रॉयल 11 को, ये निश्चित रूप से उम्मीद कर रही होगी जनता जनार्दन यहाँ पर कि 90 रन का एक विशाल लक्ष्य खड़ाने में कामयाब हो पाए वहाँ पर स्मार्टचेन रॉयल 11। बहुत ही कड़ा मुकाबला, कांटे की टक्कर रहेगी, क्योंकि जिस अनुभव से पेट्रोसर्व इंटरनेशनल निकल कर आई है, आप देख सकते हैं बड़े दिग्गज नाम सुल्तान खान, अंकुर सिंह, हाल ही में काफी कामयाबियों की सतह को छुआ है वहां पर फरदीन काजी। विकेट्स के पीछे आप देख सकते हैं उन्हें नंबर 5 जर्सी फरदीन काजी की। यहाँ पर अकरम का रोल मैं कहूँगा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जिस हिसाब से जेनिश की बल्लेबाजी वहां पर हो रही है, अकरम को चाहिए कि अपनी विकेट को रोक कर रखें। और बहुत ही बढ़िया गेंद, उतनी ही खूबसूरती के साथ दिशा दिखाए उसे शॉर्ट कवर्स के क्षेत्र में 1 रन आसानी के साथ पूरा किया और वापस बुलाया है जेनिश पटेल को। काफी आक्रामक लय पर नजर आते हुए जेनिश, बहुत ही बढ़िया ताबड़तोड़ लय में नजर आ रहे हैं जेनिश पटेल। बूम बूम जेनिश स्ट्राइक पर मौजूद, सामना करेंगे ऐश्वर्या सुरवे का। स्विच हिट लगाने का प्रयास, सुल्तान वहां पर मौजूद, कैच हो सकता था लेकिन जस्ट शॉट। क्या ये जीवन दान है? क्या ये वो मौका था जहां पर आप जेनिश को डिसमिस कर सकते थे? एक्शन रिप्ले, रिवर्स स्वीप लगाने के चलते वहां पर एक कैच थमा बैठ सकते थे सुल्तान को, लेकिन जीवन दान मिलता हुआ बड़ी विकेट, बड़ी मछली हाथ लग सकती थी यहां पर पेट्रोसर्व इंटरनेशनल को। लेकिन जितनी देर ये जोड़ी टिकी रहेगी अभिषेक, उतना खतरा बढ़ता रहेगा वहां पर पेट्रोसर्व इंटरनेशनल के लिए। जी बिल्कुल, खास करके जेनिश की बात करें तो वो इससे भली भांति उनको पता है विकेट कैसा बिहेव करेगी, शाम में कैसा विकेट खेलेगी, उसके बाद चीजें किस तरह से बदलेंगी। लेकिन अब सामने बड़े बड़े गेंदबाज हैं, धुरंधर गेंदबाज हैं। अंकुर सिंह को आपने देखा, सुल्तान को देखा, और अब ऐश्वर्या आए हैं, ऐश्वर्या सुरवे, वो भी लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हैं, हाइट का बढ़िया इस्तेमाल करते हैं, कंधे का बढ़िया इस्तेमाल करते हैं, जो इनकी गेंदबाजी में हमने देखा है। और अब वो किस नक्शे कदम पर टीम को आगे बढ़ाते हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। ऐश्वर्या की गेंद, ये बहुत अच्छी तरीके से लगातार बल्लेबाज रीड कर रहे हैं उस लाइन और लेंथ को। अब यहां से आगे निकलने की कोशिश चल रही है। जी हाँ, दोनों ही टीमें, यदि आप बात करें स्मार्टचेन रॉयल 11 की या फिर बात करें पेट्रोसर्व इंटरनेशनल की, दोनों ही टीमें अपना पहला मुकाबला खेलती हुई इस मैदान पर। लेकिन जेनिश को जब आप देखते हैं तो ऐसा लग नहीं रहा कि वो पहला मुकाबला खेल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से पिच को रीड किया है उन्होंने और बहुत ही खूबसूरती के साथ, टाइमिंग के साथ वहां पर शॉट सिलेक्शन नजर आती हुई जेनिश की। बढ़िया गेंद, इस बार भाग्य का साथ मिलता हुआ बाहरी किनारा, गेंद बाउंड्री लाइन की ओर बढ़ती हुई, 4 रन मिलेंगे वहां जेनिश पटेल को। और
जेनिश को कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जरा आवाज सुना दीजिए एक बार। लीजिए, इतने सारे इनके सपोर्टर हैं, तो अब बातचीत चल रही है पूरी टीम के लिए, क्योंकि टीम को अब पता है और पेट्रोसर्व इंटरनेशनल टीम को पता है कि टीम अगर यहां से बड़े स्कोर की तरफ चली जाएगी तो फिर उससे उबरना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा और उस मुश्किल दौर से आपको जूझना पड़ेगा। तो इसलिए अंकुर सिंह लगातार टीम से बातचीत करते हुए, फिरोज शेख हैं उस टीम में और भी कई सारे, ऐश्वर्य सुल्तान खान, ये सारे लोगों से एक बातचीत चलती हुई, क्योंकि अगर आप 3 ओवर के क्रिकेट को देखें तो कुल मिलाकर 3 ओवर के बाद स्कोर कार्ड पर 28 रन टंग चुके हैं। तो ये आसान बात है नहीं ऐसे वक्त में, और अगर इस रन रेट के साथ टीम आगे चलती रही तो 90 से 100 के आंकड़े तक भी पहुंच सकती है, जो कि दूसरी पारी में बहुत मुश्किल रहेगा चेज कर पाना। जी हाँ, बिल्कुल जैसे कि आपने कहा, अंकुर सिंह वहां पर अपनी पूरी टीम के साथ एक गुफ्तगू करते हुए एक बातचीत की है उन्होंने। एक संतुलन जो इनकी टीम में मौजूद है उसको बरकरार रखने की पूरी जी तोड़ मेहनत करते हुए, काफ़ी अनुभवी एक्सपीरियंस्ड कप्तान है अंकुर सिंह, भली भांति जानते हैं कि किस गेंदबाज को किस स्लॉट में यूज़ करना है। इसलिए आप ये चौथा परिवर्तन देख रहे हैं वहाँ गेंदबाजी में। फिरोज आए हैं अपने खाते का पहला और टीम का चौथा ओवर लेकर कमेंट्री बॉक्स छोर से गेंदबाजी का भार संभालेंगे। देखना होगा, ये दिलचस्प रहेगा कि यहाँ से अपनी पारी को किस हिसाब से आगे बढ़ाते हैं ये दोनों ही खिलाड़ी, अकरम बोनी, जेनिश पटेल। बढ़िया गेंद, इस बार टैप किया से एक क्विक रन लेने का प्रयास, वहां पर बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। एक छोड़ पर चीते की दौड़ तो दूसरे छोड़ पर वहां पर शेर ने दहाड़ लगाई है। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। ये काफी सूझबूझ वाली सेंसिबल क्रिकेट चल रही है अभिषेक। आप देखेंगे जेनिश को तो खराब गेंद मिलती है तो उसे पनिश करते हैं, और जब मौका मिलता है तो स्ट्राइक रोटेट करके वहां पर गेंदबाज पर दबाव बनाने की पूरी जी तोड़ मेहनत करने में कामयाब होते हैं वहां पर दोनों बल्लेबाज। जी बिल्कुल, अब इस तरह से लगातार आगे बढ़ना पड़ेगा, टीम को ले जाना पड़ेगा। जेनिस लगातार बातचीत करते हुए, उधर अकरम बोनी भी उनका भरपूर साथ देते हुए इस मौके पर, और साथ और सहयोग के साथ किसी भी चीज को आगे बढ़ाया जा सकता है, आगे लाया जा सकता है। अब यहां पर इस बार वाइड का इशारा अंपायर से आता हुआ और इस तरीके से एक एक्स्ट्रा रन जुड़ेगा। ये शोर को महसूस कीजिए, इस ग्राउंड पर जितने दर्शक आए हैं ये सारे इनके सपोर्टर हैं, दोनों टीम को सपोर्ट करने वाले हैं। जी हाँ, मैं दाद देना चाहूंगा सूरत के इन दर्शकों की जिन्होंने ये समा बांधा है आज की इस शाम में। इतनी रंगीन शाम को और भी रंगीन बनाया है इन्होंने अपनी मौजूदगी से। बहुत ही खूबसूरत शॉट, बढ़िया टाइमिंग, बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेल दिया। वहां पर आकाश चिंदारिया मौजूद, 2 रन लेने में कामयाब। तीसरे रन की कोशिश, रन आउट की संभावना, लेकिन बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। बहुत ही खूबसूरत, अद्भुत, अविश्वसनीय, मानो जैसे वहां पर पलक झपकते ही 3 रन ले लिए इन दोनों ही खिलाड़ियों ने। क्या ही तालमेल, क्या ही अंडरस्टैंडिंग इन दोनों के बीच में। ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, गेंद तक पहुंचा और बढ़िया तरीके से उसे टाइम किया। शॉट सिलेक्शन भी बहुत बढ़िया वहां पर जेनिश पटेल की। काफी क्लासिकल बल्लेबाज हैं जेनिश, और उनका बखूबी साथ निभा रहे हैं यहाँ पर, एंकर रोल प्ले कर रहे हैं अकरम बोनी भी। उनको पूरा वहां पर छूट देते हुए कि अपनी इनिंग को निर्भय होकर खेलें। सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी यहाँ पे अकरम के द्वारा, और बातचीत जब हो रही होगी दोनों बल्लेबाजों के बीच तो इसी चीज को लेके कि आप विकेट पर डटे रहिए, विकेट को जुटाए रखिए और हम बड़े बड़े स्ट्रोक लगाएंगे, स्ट्रोक ऑफर हम करेंगे। जेनिश ये सोच रहे होंगे क्योंकि लोकल बॉय है, यहाँ के सपोर्टर इनको सपोर्ट करने आए हैं, और वो अगर इस तरह से परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो वो जरूर नाखुश नजर आएंगे। लेकिन मैंने समझूंगा कि यहाँ की बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, सटीक यॉर्कर,
रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास था जेनिश का, लेकिन पूरी तरीके से चूके। जैसे कि आपने कहा कि यदि जेनिश पटेल अगर परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो शायद सूरत की जनता नाराज होगी, लेकिन मैं नहीं समझूंगा कि यहाँ पर परफॉर्मेंस जैसा भी रहे जेनिश का, सूरत का प्यार उन्हें मिलता रहेगा। बाहरी किनारा, इस बार जाना होगा वापस। कई दिलों को यहाँ पर तोड़ा है फिरोज ने, बहुत ही बड़ी विकेट अपने हाथ लगाई है फिरोज ने, एक उम्मीद की किरण को। वक्त था आकार चेन स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का, और इसके बाद एक बार फिर से हम वापस आपके साथ हैं। चौथे ओवर की आखिरी गेंद फेंकी जानी है, लेकिन गेंदबाज के मंसूबे साफ स्पष्ट हैं। अब बल्लेबाज को रोकना, ये चाह रहे हैं कि किस तरह से रोका जाए, बल्लेबाज को पढ़ा जाए, उनकी मानसिकता को, उनकी मेंटालिटी को, किस अंदाज में वो जाना चाह रहे हैं। ये गेंद आगे टप्पा रखा था, ये एफर्ट देखिए, दाद देनी पड़ेगी। लगातार जिस तरह से जान हलक में लगातार बल्लेबाज के डालने की कोशिश चल रही है। चौथे ओवर का क्रिकेट यहां पर समाप्त होता हुआ इसी के साथ, और 4 ओवर के बाद अगर स्कोर कार्ड पर नजर डालें 34, लॉस ऑफ 2 विकेट। जी हाँ, जो डैमेज करना था वो काम कर दिया है जेनिश ने। यहां से आने वाले बल्लेबाजों की ये जिम्मेदारी रहेगी कि इस मोमेंटम को किस हिसाब से आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं और किस हिसाब से आप एक लक्ष्य खड़ा करने में कामयाब होते हैं पेट्रोसर्व इंटरनेशनल के आगे। क्योंकि जिस काम के लिए कप्तान ने भेजा था जेनिश को, जेनिश ने बखूबी उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरा है और एक बढ़िया पारी खेलकर वापस पवेलियन को लौटे हैं। 24 रनों की बहुत ही तेज तर्रार पारी वहां पर जेनिश के बल्ले से देखने को मिली। सलामी बल्लेबाज थे, लेकिन दाद देनी होगी वहां पर फिरोज की सफलता दिलाई अपनी टीम को, साझेदारी को तोड़ा वहां। इस बार गेंदबाजी के लिए आए हैं फिर से ऐश्वर्या। अच्छी गेंद, इस बार कट किया उसे, पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर वहां पर मौजूद जरूर है। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे टाइटल स्पॉन्सर 10 प्रीमियर लीग सीजन 4 के skyexchange.net, और साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पार्टनर आकर चेन, उनके साथ DG बिट्स, स्मार्ट चेन, socos.io, पेप्सी, UYP अनलीश योर पोटेंशियल, और साथ ही साथ वेन्यू पार्टनर का भी सूरत डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत का। बहुत ही बढ़िया गेंद, गति के साथ बीट किया इस बार जिगर पटेल को। जिगर आजमाना होगा यहाँ पर, बड़ा जिगर करना होगा जिगर पटेल को, बड़े शॉट्स लगाने जरूरी। जनता जनार्दन अपनी आंखों में सपने लिए बैठी है, उम्मीदें लिए बैठी है यहाँ
स्टैंड्स पर। अच्छी गेंद कट किया उसे, एक रन आसानी के साथ पूरा किया। यदि कैलकुलेटिव अगर स्कोर देखें यहाँ से अभिषेक, अभी तक 35 रन लग चुके हैं बोर्ड पर। यहाँ से कुल मिलाकर 21 गेंदें और भी आनी बाकी। यदि 21 गेंदों में 21 सिंगल भी आप अगर जोड़ लें तो वहाँ पर आसानी के साथ 60 के करीब पहुँच सकते हैं। लेकिन स्ट्राइक रोटेशन के साथ अगर बाउंड्रीज लगाने में कामयाब होते हैं तो 70-80 का स्कोर तो आसानी के साथ मैं समझता हूँ पार कर लेगी। देखिए, मैं तो अभी भी 70 की तरफ ही देख रहा हूँ कि अगर वहां तक अगर टीम नहीं पहुंची तो फिर लड़ाई में वो मजा नहीं आएगा। वो जो मसाला डालते हैं वो अगर नहीं डाली जाए सब्जी के साथ में तो जैसे आनंद नहीं आता है, वैसे ही 60-65 के स्कोर तक तो पहुंचना इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप 70 प्लस तक जाते हैं तो फिर मजा आने वाला है इस मुकाबले के अंदर, क्योंकि बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े सितारे हैं और ये सब चीज करते हुए देखेंगे। तो मैं 60-70 की तरफ देख रहा हूं। स्टंप के बाहर इस बार डॉट बॉल के साथ इस पारी को आगे बढ़ाते हुए ऐश्वर्या। लगातार ऐश्वर्या के द्वारा एक कोशिश है, उनको भी अब वो भी विकेट के कॉलम को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक उनका विकेट का कॉलम खाली है। जी हाँ, फिरोज ने सफलता दिलाई थी, उसके बाद जैसे कि आपने बोला वहां पर मौका जरूर बना है लेकिन उस मौके को लपक नहीं पाए फील्डर। आपकी बात सुन ली थी वहां ऐश्वर्या सुरवे ने, उस कॉलम को पूरा करना चाहते थे, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की थी वहां पर, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को सही से जज नहीं किया फील्डर ने, वरना एक और झटका लग सकता था और काफी बड़ा झटका होता ये। 5 ओवर के खेल के अख्ताम पर 38 2 विकेट के नुकसान पर। तो इस और इसी के साथ 5 ओवर के बाद स्कोर है 38, लॉस ऑफ 2 विकेट। टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था यहां पर स्मार्ट चैन रॉयल 11 की टीम ने, और अब यहां पे जान अलग में और विकेट जाएगी वापस। और यहां पर अगर कैचेस की मांग हो और पीछे कप्तान खड़ा हो तो फिर क्या ही कहने। अंकुर सिंह मौजूद थे और गेंदबाज का नाम है यहां पर फिरोज शेख। फिरोज शेख कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार विकेट दिला रहे हैं और इस तरह की कामयाबी की दास्तान अगर लिखेंगे तो कप्तान को भी मजा आएगा। कप्तान भी उनका भरपूर साथ दे रहे हैं लगातार, अब क्योंकि उनको पता है कि पेट्रोसर्व इंटरनेशनल की टीम को कि अगर उनके रन्स ज्यादा स्कोर कार्ड पर हो गई सामने वाली टीम की तो फिर आपके लिए चेज करना बहुत मुश्किल रहेगा। लेकिन अब स्मार्ट चेन रॉयल 11 लगातार कोशिश कर रही है। स्टार्ट तो बढ़िया मिला था जब से पहली विकेट गंवाई और उसके साथ साथ जेनिस जब वापस गए तो फिर चीजें इनके लिए मुश्किल से रहने लग गई, बट उन मुश्किलों से अब निकलना चाहेगी, पर्वत की ऊंचाइयों पर चढ़ना चाहेगी। मैन विद द गोल्डन आर्म, एक बार फिर से फिरोज। जिन्होंने सफलता दिलाई थी अपनी टीम को, एक बार फिर से अपना जादू बिखेरने के लिए आए हैं, गेंदबाजी का कमान संभालते हुए अपने खाते का आखिरी ओवर लेकर। एक बार फिर से अपनी कप्तान की उम्मीदों पर खड़े उतरना चाहते हैं वहां फिरोज। बहुत ही बढ़िया गेंद, इस बार दिशाहीन गेंदबाजी
थोड़ा से दिशा से चूके वहां पर, और अंपायर का इशारा वाइड। एक और अतिरिक्त रन का इजाफा होता हुआ। देखिए यहाँ पर जब आप वाइड गेंदें करते हैं अभिषेक, तो बैट्समैन को थोड़ा सा टाइम मिलता है वहाँ सेट होने का, और क्योंकि एक रन की बढ़ोतरी होती हुई वहाँ। बहुत ही बढ़िया शॉट, बुलेट की तरह निकला वहां पर, लेकिन फील्डर दीवार की तरह खड़े रहे। निश्चित रूप से 3 रन बचाए अपनी टीम के। फील्डिंग डिपार्टमेंट को यदि देखा जाए तो थोड़ा सा मैं कहूँगा कमजोर रहा है यहाँ पर पेट्रो सर्व इंटरनेशनल का, क्योंकि एक जीवनदान सुल्तान की ओर से मिला। वहां पर एक और अपॉर्चुनिटी क्रिएट की थी ऐश्वर्या ने, उसको भी लपक नहीं पाए वहां पर फील्डर। जी थोड़ा सा मुश्किल था वो कैच, अगर आप देखें उल्टा भागकर इस तरह से कैचेस की मांग थी, बट उसको करना आसान काम होता है नहीं। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि किस तरह से टीम को आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से टीम को आगे ले जाएंगे, क्योंकि 6 ओवर का ये क्रिकेट चल रहा है। अकरम बोनी लगातार डटे हुए हैं, लगातार जुटे हुए हैं। लाइव फ्रॉम लालवाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत में यह खूबसूरत सा दृश्य गवाही देता हुआ इस मुकाबले का, जिस अंदाज में ये लगातार आगे बढ़ रहा है। Paging the captains of Deepak Dada Pratishthan and Valsad strikers for the next match. ये देखिए इस बार खेलना चाह रहे थे स्लॉक स्वीप के अंदाज में, लेकिन ऐसा कुछ कनेक्शन बैट और गेंद के बीच में हुआ नहीं। 6 ओवर अच्छा बीतता हुआ अभी तक। थोड़ी सी अब सुस्ती नजर आ रही है यहाँ पर बल्लेबाजी वाली टीम के पर एक नजर अगर हम डाली जाए, क्योंकि टॉस जीता था इन्होंने, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था स्मार्ट चैन रॉयल 11 के कप्तान ने। और इलेक्शन के बाहर एक बार फिर से वाइड का इशारा अंपायर का। देखिए जिग्नेश जब तक वहां पर क्रीज पर मौजूद थे तो कहानी कुछ और थी इस मैच की। रनों की गति को इतनी तेजी के साथ बढ़ाया था जिग्नेश ने, जेनिश ने माफ कीजिएगा, जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी उन्होंने की थी उसको, उस मोमेंटम को आगे लेके जाने में थोड़ी सी यहाँ पर चूक होती हुई इन बल्लेबाजों से। काफी देर से खड़े हैं क्रीज पर अकरम बोनी, सलामी बल्लेबाज को रिप्लेस करने के लिए आए थे। उनका साथ देते हुए मुबीन मलिक 6 ओवर की समाप्ति पर 44 3 विकेट के नुकसान पर स्मार्ट चैन रॉयल 11। तो अब यहां से कुछ ना कुछ और मैं दोनों टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक बार ठीक कमेंट्री बॉक्स के पास आकर रिपोर्ट करें। वलसाड स्ट्राइकर्स टीम के कैप्टन और दीपक दादा प्रतिष्ठान टीम के कैप्टन, दोनों टीम के कैप्टन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा। अंकुर सिंह स्लोअर गेंद इस बार, बढ़िया इस्तेमाल, चेंज ऑफ पेस का अच्छा वेरिएशन इस खिलाड़ी से देखने को मिलता हुआ। लगातार एक कोशिश, लगातार एक ये सिलसिला ये बरकरार रखना चाहेंगे। जिस स्टैंडर्ड के साथ गेंदबाजी करते हैं, जो तरीके आजमाते हैं, वो काफी काबिले तारीफ है इस खिलाड़ी के अंदर। और अब यहां से फील्ड प्लेसमेंट पर एक नजर डाली जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ
मिड विकेट की दिशा में डीप में खिलाड़ी नजर आएगा ऑन साइड में, और वहीं लॉन्ग ऑन पर भी एक खिलाड़ी आपको नजर आएगा। इस तरह के फील्ड प्लेसमेंट के साथ, आक्रामक फील्ड प्लेसमेंट के साथ गेंदबाज तैयार होते हुए, लेकिन बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ। ये गेंद इस बार बाहर जाती हुई गेंद सही टप्पे के साथ निकलने के बजाय गेंद थोड़ी सी शरारत करती हुई निकली और वाइड का इशारा अंपायर से आता हुआ। अंकुर सिंह, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, लेकिन चेंज ऑफ पेस का अच्छा वेरिएशन था। मिक्सअप गेंद और इस तरीके से बाहरी मोटा किनारा लगकर सीधे पहुंचे विकेट कीपर के पास, एक और झटका लगता हुआ अब यहां पर स्मार्ट चैन रॉयल 11 टीम के लिए। नए बल्लेबाज आए हैं नीलेश उर्फ मोंगिया, सामना करेंगे अंकुर का। बहुत ही बढ़िया गेंद ऑप्शन के बाहर रखी थी, जरूर लो फुल टॉस गेंद थी। आते ही अपने खाते को खोला वहां पर एक रन के साथ नीलेश ने, लेकिन यहाँ पर दाद देनी होगी अंकुर सिंह की। जिस तरह से कमबैक किया है इन्होंने अपनी टीम को लेकर के, नाकामियों के ढेर से कामयाबी को निकालना ये दलेरों का काम है, और उस काम को सरअंजाम देते हुए यहाँ पर अंकुर सिंह बहुत ही बढ़िया गेंद, इस बार गति से बीट किया वहां पर बल्लेबाज को। कुछ हद तक वहां पर परेशान से नजर आते हुए अकरम बोनी गियर को चेंज करना चाहते हैं, लेकिन इस बार सटीक गेंदबाजी अंकुर सिंह द्वारा पढ़ लिया था वहां पर अकरम को। यहाँ पर गियर बदलना चाहते हैं अकरम, उसी के हिसाब से छोटी गेंद की सटीक निशाने के साथ। एक और बढ़िया गेंद, एक और बढ़िया कैच वहां पर फरदीन काजी का। दूसरी सफलता इस ओवर में मिलती हुई अंकुर सिंह को। क्या ही कहने इस गेंदबाज के। 47 पर 5। कुछ हद तक परेशान जरूर थे वहां पर अकरम, जिसके चलते एक बड़ा शॉट लगाने का प्रयास था। जाल जो बुना था अंकुर ने, उस जाल में फांसा उस मछली को, और बहुत ही खूबसूरत शॉट लगाने के चलते बाहरी किनारा लगा और एक बढ़िया कैच वहां पर देखने को मिला फरदीन काजी द्वारा। के तंडेल आए हैं नए बल्लेबाज। बढ़िया गेंद एक बार फिर से हवा में, वहां पर अंकुर सिंह खुद आएंगे। थोड़ा सा मुश्किल प्रयास जरूर था, लेकिन कमेंडेबल एफर्ट वहां पर अंकुर सिंह द्वारा। आसान नहीं होता है किसी भी गेंदबाज के लिए, जब आप गेंदबाजी करते हैं तो उसके साथ फॉलो थ्रू रीजन में कैच को लपकना, और ये तो काफी दूर था अंकुर से, लेकिन बहुत ही बढ़िया एफर्ट रहा है। इसी के चलते ओवर होता हुआ समाप्त। 7वें ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 48, 5 विकेट के नुकसान पर स्मार्ट चेन रॉयल का।
भविन। तो यहां पर नजर आ रहे हैं आपको स्क्रीन पर इस 10 PL के असली हीरो चेयरमैन आरिफ खान सर और इसके साथ साथ गणमान्य अतिथि। मैं तहे दिल से आप सबका अभिनंदन करता हूं। लेकिन उधर आखिरी ओवर के साथ, पहले इनिंग के आखिरी ओवर के साथ गेंदबाज तैयार। अच्छी गेंद, बढ़िया शॉट वहां पर अंदरूनी किनारा, जिसके चलते एक रन चुराने में कामयाब। दूसरे रन की मांग है और बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। अच्छी शुरुआत कहूंगा मैं इस इनिंग के आखिरी ओवर की। 2 रन के साथ इस ओवर को शुरुआत दी है। इस ओवर का आगाज किया है वहां पर बल्लेबाज ने। संकेत तांडेल स्ट्राइक पर मौजूद। 5 गेंदें अभी भी शेष। देखना होगा कहां तक ले जा पाएंगे। 50 रन का स्कोर, 50 रन का आंकड़ा टच करती हुई। बहुत ही बढ़िया गेंद स्लॉट में थी, लेकिन उतना बढ़िया संपर्क नहीं कि बाउंड्री मिल सके वहां संकेत को। लेकिन 1 रन जरूर मिलेगा। अंकुर सिंह पेट्रोलिंग करते हुए लॉन्ग ऑफ रीजन पर, कप्तान है अपनी टीम के और कप्तान थे कल रेस्ट ऑफ इंडिया के भी, महाराष्ट्र के, माफ कीजिएगा। लो फुल टॉस गेंद, इस बार जादू दिखाया वहां पर। धीमी गति की फेंकी हुई गेंद, जिसके चलते समझ नहीं पाए बल्लेबाज। उतना बढ़िया संपर्क नहीं जितना कि होना चाहिए था। हालांकि फुल टॉस गेंद थी, लेकिन धीमी गति के कारण उतना समझ नहीं पाए बल्लेबाज। बहुत ही बढ़िया ओवर साबित होता हुआ अभी तक पेट्रो सर्व इंटरनेशनल के लिए। बहुत ही बढ़िया सटीक गेंदबाजी। एक बार फिर से एक्स्ट्रा कवर्स के क्षेत्र में कृष्णा कोहली वहां पर मौजूद। 1 रन आसानी के साथ चुरा लिया। दूसरे रन की कोशिश, लेकिन वो नाकाम जाएगी। बढ़िया थ्रो वहां पर देखने को मिली। सटीक स्ट्रेट ऑन टू द बुल्सआई तो नहीं कह सकते, लेकिन जिस हिसाब से वहां गैदर किया फरदीन ने, और एक और झटका लगता हुआ रन आउट के रूप में स्मार्ट चैन रॉयल्स को। तो अब यहां पर टॉस जीतकर जो पहले बल्लेबाजी का फैसला है स्मार्ट चेन रॉयल 11 की तरफ से, वो किस कदर सही साबित कर पाएंगे। एक अच्छे स्कोर की तरफ टीम बढ़ रही है। लगातार स्मार्ट बैटिंग तो देखने को नहीं मिले। जैनिश ने अच्छे बैटिंग की, बट अब इनके तमाम बल्लेबाजों के द्वारा किस तरह की बल्लेबाजी होती है। लेकिन लगातार गेंदबाज अब यहाँ पर एक अलग रुख में, एक अलग रूप में नजर आए और बाद में जो कमबैक करी। और वो कहते हैं ना कि कमबैक इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेटबैक, और वही चीज इन्होंने बड़े बखूबी तरीके से निभाया है इनके तमाम गेंदबाजों ने मिलके। बाद में अंकुर सिंह ने भी विकेट झटके, लेकिन फिरोज की भी दाद देनी पड़ेगी। इस बार सीधे बल्ले से निकाल दिया है। वहां पे जब तक अंकुर सिंह आते गेंद को फील करते, थ्रो करते, बहुत अवसर था दोनों के बीच छोर बदलने को, और इसी के साथ छोर बदलते हुए आगे निकले। बढ़िया क्रिकेट चलता हुआ, एक बेहतरीन मौसम। और जब ऐसे मौसम में जब ऊपर से ड्यू गिरे और उसके साथ साथ ये लाइट्स में हरी भरी घास पर आप खेले तो मजा कुछ और होता है। मजा तो इस शॉट का भी था। नो मैंस लैंड में गिरी, कनेक्शन वैसा हुआ नहीं जो उम्मीद कर रहे थे बल्लेबाज। तो इस तरह से पहले इनिंग का यहाँ पे समापन होगा। बहुत तमाम तरीके से सब चीज इन्होंने किया, कोशिश किया, और अंत में स्मार्ट चैन रॉयल 11 फाइनली 57 तक तो पहुंच गई। और जैसे जैसे रात होती चली जाएगी 58 का जो टारगेट है वो आसान नहीं रहेगा चेज करना, लेकिन देखेंगे क्या कुछ होता है सेकेंड इनिंग में। जी हाँ, बिल्कुल 58 रन के लक्ष्य को खड़ा करने में कामयाब हुई है यहाँ पर स्मार्ट चैन रॉयल 11। हालांकि जिस तरह की शुरुआत थी, हम लोग सोच रहे थे यहाँ पर, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद से 80 रन का लक्ष्य खड़ा करने में कामयाब हो सकती है। लेकिन सीधे चलते हैं अभी टॉस के लिए, जहां पर तैयार हैं हमारे होस्ट को कमेंटेटर सिद्दीक भाबे।
थैंक यू कमेंट्री बॉक्स। आइए दोस्तों, आज रात के आखिरी टॉस की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं इस वक्त 10 PL टॉस बॉक्स में हूं और आज हमारे साथ अनवर भाई जुड़ चुके हैं टॉस करने के लिए। दोनों टीमों के कैप्टन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। मितेश दरबार वलसाड स्ट्राइकर के कैप्टन और आकाश तारेकर दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली के कैप्टन। आकाश तारेकर एंड मितेश दरबार दोनों को टॉस के लिए जुड़ जाना है। हाई वोल्टेज मुकाबले का हम टॉस करने जा रहे हैं। 10 PL सूरत लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में इस वक्त मौसम है सुहाना और हर कोई है 10 PL का दीवाना। 10 PL टेनिस दुनिया का वो वर्ल्ड कप है जिसे हर दुनिया का क्रिकेटर्स खेलना चाहता है और हर दर्शक देखना चाहता है। मोस्ट वेलकम आकाश तारेकर, बहुत ही ज़बरदस्त बैट्समैन है। मितेश दरबार वलसाड स्ट्राइकर के कैप्टन, आपको जुड़ जाना है। मेरे साथ आज के हमारे गेस्ट अनवर भाई हैं, स्वागत है आपका। यस वेलकम मितेश दरबार वलसाड स्ट्राइकर के कैप्टन है। मैं सिक्का आपको बताता हूँ, सिक्के में तो बहुत कुछ है। एक तरफ है 10 PL जिस दुनिया टेनिस क्रिकेट का वर्ल्ड कप जिसकी धूम मची हुई है इस वक्त सारी दुनिया में, और एक है पावर्ड बाय पेट्रोमन। ये सिक्का मैं अनवर भाई को देता हूँ। कॉल कौन करेगा? मैं बोलता हूँ 10 PL कहना और 10 PL ही आया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आकाश तारेकर, सबसे पहले आप देखिए चाम बढ़ गया है, ग्लैमर बढ़ गया है, दर्शक बढ़ गए। 10 PL की ये खूबसूरत रात है। ये बताइए, आपने टॉस जीता है, क्या करेंगे? फील्डिंग करेंगे भाई। रीज़न बता सकते हैं? क्योंकि देर रात ड्यू फैक्टर भी रहता है, चेस करना थोड़ा मुश्किल रहता है। क्या कारण है कि आपने फील्डिंग चुनी है? टीम मीटिंग में पहला हुआ है कि अपन टॉस जीतने के बाद चेस कर सकते हैं, उस हिसाब से हमने पहला फील्डिंग किया। ओपनिंग सेरेमनी मुकाबला बहुत ही डैशिंग अंदाज में जीता था दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली ने। आकाश, ये बताइए कि जो पहला मैच था प्ले 11 में कोई चेंजेस है? हाँ, योगेश पेनकर की जगह पंकज यादव खेल रहा है, बाकी सेम टीम है। और ये बताइए कि वो कौन से गेंदबाज हैं जो आपको फ्लाइंग स्टार्ट देंगे? राजेश सोरटे, विजय पावले, इमरोज खान है। सभी बॉलर ने पिछला मैच जो देखा आपने, वो बॉलिंग की वजह से हम लोग जीत गए, क्योंकि हमने 15-20 रन कम किए थे। आकाश, ये बताइए, चौथा सीज़न है, इससे पहले कितने 10 PL खेले? ये तीसरा सीज़न है मेरा, 3 सीज़न खेल चुका हूँ ये। कैप्टन कोई बारी शेयर करना चाहेंगे, कोई ऐसा मोमेंट पिछले 10 PL का? नहीं, पिछला 10 PL तो मैं खेला, लेकिन कैप्टन योगेश पेनकर था, लेकिन हम सेमीफाइनल में आउट हो गए थे बाहर। ऑल द बेस्ट। मितेश दरबार मेरे साथ है। मितेश, फर्स्ट ऑल टीम जो अभी तक 10 PL में खेली है, पहले तो ये कि आप टॉस जीते तो क्या करते? हम बैटिंग ही लेने वाले थे, फिर भी उन लोगों ने फील्डिंग लिया, इसलिए अच्छा है उन लोगों को बैटिंग। ये बताइए मितेश कि अभी तक जो टीम खेली है 10 PL में, एज अ कैप्टन आप सेटिस्फाई हैं कि बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग में आपकी टीम परफेक्ट है, या कोई ऐसा शोबा है जहाँ पे आपको इस मैच में ज़्यादा ध्यान देना है? टीम में सब प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन जो पिछला मैच गुजरा हमारा, उसमें मैं बैटिंग भी थोड़ा लेजी किया और बॉलिंग भी थोड़ा लेजी हुआ है। एक आखिरी सवाल के 10 PL का चाम कल से भरा हुआ है, कैसा फील कर रहे हैं आप? पहले तो मैं आरिफ भाई को थैंक्स कहना चाहूँगा, जिन्होंने इतना जो वर्ल्ड कप टेनिस का कहा जाता है वो गुजरात में लाए, और बाद में हमारे इरफान भाई को थैंक्स कहना चाहूँगा, जिन्होंने हम लोगों को इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलने का मौका दिया। और रही बात 10 PL की, जो गुजरात में आके और भी ये 2 दिन हुआ है, और पिछले 2 दिन में और भी पब्लिक ज़्यादा होगी और भी मज़ा आएगा। All the best. The news from the toss box is Deepak Dada Pratishthan Dombivli won the toss. They elected ball first. Is back to the commentary box. चलते हैं दोस्तों 10 PL की अद्भुत
क्रिकेट दुनिया की ओर स्वागत है आप सभी का। खेल की शुरुआत होती हुई नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत अभिवादन है। स्मार्ट चैन रॉयल 11 वर्सेस पेट्रो सर्वो इंटरनेशनल के बीच ये मुकाबला है और यहाँ पे लक्ष्य की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर टारगेट जो मिला है 58 का है। इसको कैसे अचीव करेगी, इसके लिए 2 बल्लेबाज तो आन पड़े हैं यहाँ पर, वो दमखम दिखाने, प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं इस मुकाबले में, क्योंकि इससे पहले इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक मुकाबला रह जाएगा दूसरे दिन का। कौन से इस मैच के खिलाड़ी नायक बनेंगे, ये दिलचस्प रहेगा। ये दूधिया रोशनी से सराबोर ये हरी भरी घास पर ये ग्राउंड। इस मर्तबा बैकफुट पे जाके कट करना चाहते थे, गेंद विकेट कीपर के पास जाती हुई डॉट गेंद। स्वागत है आप सभी का दुनिया के टेनिस के वर्ल्ड कप 10 में। मेरे साथ कमेंटेटर अभिषेक जुड़ चुके हैं। इसका एक्सचेंज .net प्रेजेंट एंड पावर्ड बाय पेट्रोलमन। इस मर्तबा स्लाइस किया है, गेंद पीछे की तरफ सरक रही है, उसका पीछा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया एफर्ट, 2 रन आते हुए स्कोर में बढ़िया एफर्ट रहा था, वहाँ पर पैरों से रोका था। 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पेट्रो सर्व इंटरनेशनल का कुल मिलाकर 3 रन। अब पहले बल्लेबाजी करते हुए स्मार्ट चेन रॉयल 11 ने बनाए 57 रन, 58 का लक्ष्य रखा है। दोनों बैट्समैन इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, फरदीन काजी और रजत मुंडे। हर दिन फरदीन का स्लोगन आजकल टेनिस क्रिकेट में चलता हुआ। रजत मुंडे को खींच के मारा है, गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, नहीं रोक पाएंगे। 4 रन। और अब यहाँ पर लगातार ये कोशिश चल रही है कि किस तरह से टीम को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह टीम को जोड़ा जाए। ये चीज है यहाँ पर। अब बैटिंग को भेजा है अंकुश सिंह ने 2 बल्लेबाजों को, तो क्या प्लानिंग के साथ बल्लेबाजी होगी, ये बहुत दिलचस्प रहने वाला है। बहुत ही खूबसूरत शॉट था, पुल किया था गेंद को। फिर से बैकफुट पे गए, क्रैकिंग स्ट्रोक, टिपिकल पावर प्ले शॉट और गेंद जा रही है कवर बाउंड्री के बाहर। रजत मुंडे का दूसरा चौका। मुंडे ऑन फायर नाउ, यू कैन सी देयर पंच वेरी हार्ड ओवर द इनफील्ड, कपल ऑफ बाउंसेस क्रॉस द कवर बाउंड्री फॉर 4। देखते देखते पेट्रो सर्व इंटरनेशनल के बैट्समैन बिल्कुल पेट्रोल की तरह बल्लेबाजी से आग उगलते। ये अंदाज लगातार जिस तरह से है बल्लेबाज का, वो तो चाह रहे हैं कि बहुत तेजी से भागा जाए स्कोर कार्ड की तरफ। अभी पटेल इस मरतबा बढ़िया गेंद आगे रखा था, पैर नहीं चले थे वहां पर। वाइड यॉर्कर थी, बल्ले के नीचे से निकल गई विकेट कीपर के पास। 1 ओवर की समाप्ति, पलटवार होता हुआ यहाँ पर पेट्रो सर्व इंटरनेशनल का 11 रन बिना किसी विकेट के। देखिए कहीं भी पैरों में हलचल नहीं थी। जहाँ मोबाइल में नेटवर्क ज़रूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है। वाइड यॉर्कर के बारे में एक ही बात कही जा सकती है, क्रिकेट में 2 ही चीज़ों की इज्जत होती है, पहला सचिन तेंदुलकर और दूसरा परफेक्ट यॉर्कर। खेल की शुरुआत होती हुई 1 रन बनाकर फरदीन काजी खेल रहे हैं और रजत मुंडे ने 10 रन बनाए। स्वागत है आप सभी का 10PL। कहते हैं अभिषेक के जिंदगी की ये सौगात हो फिर न हो, ऐसी दिलकश कोई रात हो फिर न हो। 10PL की ये 5 दिलकश रातें मिस मत कीजिए, बने रहेंगे हमारे साथ। खेल की शुरुआत होती हुई मरता क्या ना करता सूरज भदौरिया को मोर्चे पे लगाया गया। इनसाइड आउट हवा में, फरदीन काजी आउट।
और देखिए यहाँ पर लोकल हीरो लगातार छा रहा है। जेनिस ने पहले बैटिंग में कमाल का प्रदर्शन किया, अब कैच लेकर बढ़िया कैच कवर्स में। देखिए ज्यादा अपने आप को रूम दिया था फरदीन काजी ने, बल्ले का जो मुंह था वो ज्यादा खुल गया। धूम मची हुई है, झूम रहे हैं दर्शक, झूम रहा है 10PL को देखकर हर क्रिकेट प्रेमी। स्वागत है आप सभी का। इसका exchange.net present 10PL powered by Petroman, beverage partner by Pepsi, strategic timeout official partner Akar, chain official partner Sofus.io, smart chain at DigiBits, hitting partners UYP, unless your potential। सभी का हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। खेल की शुरुआत होती हुई पहली गेंद पर फरदीन काजी को चलता किया सूरज भदौरिया ने। टॉस गेंद इसमें कप्तान के हाथों से पुश किया बैट्समैन संदीप राठौड़ ने। खाता खुला संदीप राठौड़ का, कुल स्कोर 12 रन 1 विकेट। हॉकी में 10PL में कमेंटेटर वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या, अजय गरत, अभिषेक शानू, साथ ही साथ रहमत हुसैन गौसम और कमेंटेटर हरीश के ने काफ़ी रंग भरा है। और एक खूबसूरत ड्राइव गेंद बैकवर्ड पॉइंट पे गई है। रजत मुंडे बिल्कुल जिस दिन सर नीचा करके खेलते हैं उस दिन बड़ी इनिंग खेलते हैं। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन। इस मैच को अगर जीतना है स्मार्ट चेन रॉयल 11 को, तो फिर 2 से 3 झटके देने होंगे। इनफील्ड के ऊपर से खेलने की कोशिश, एक और विकेट, आउट हो गए संदीप राठौड़। और जिस तरह से इन सारे कमेंटेटर्स ने इसका शोभा बढ़ाया है, तो वो अपडेट कौन पहुंचाया है हम तक, वो इन तमाम स्कोरर्स ने, इनको भी नहीं भूलना चाहिए। ऑनलाइन स्कोरर में साथ दे रहे जेनिस पटेल एंड यश पटेल, एंड ऑफलाइन स्कोरर जावेद मलिक एंड नूर कलाम पठान। थैंक यू वेरी मच। लगातार 2 दिनों से आपने जिस तरह से हमें हर एक चीज़ों की बड़े बारीकी से अपडेट कराई है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। अभिषेक जी, देखिए स्कोरर का रोल क्या है। आप कहीं से भी बाहर से अपने घर में आते हैं, मैच शुरू रहता है तो सबसे पहले आप पूछते हैं स्कोर क्या हुआ, ये रहता है स्कोरिंग। हम अभिजीत पवार को नहीं भूल सकते, जिन्होंने कमेंट्री के साथ मैनेजमेंट का पूरा साथ दिया है। 13 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। कभी कभी अभिषेक ऐसा रहता है कि लो स्कोरिंग मुकाबले हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। वहीं एक मुकाबला यहाँ हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल, वैसा ही कुछ अभी मुकाबला रहने वाला है। क्या कुछ होगा आपके साथ अब कमेंट्री बॉक्स में ज्वाइन करेंगे एक बार फिर से अभिजीत पवार सर, प्रशांत गरत, इस मरतबा अपील और आउट अराउंड द लेग्स बोल्ड हो गए। ये देखिए इस तरह से अराउंड द लेग्स बोल्ड हो गए हैं। कमाल की गेंद थी, जिस तरह अराउंड द लेग्स बोल्ड कर दिया, वहां पर प्ले डाउन हो गए। तीसरा झटका यहाँ पे लगता हुआ, तीसरा विकेट गिरा है।
वाओ, दैट वाज अ वेरी गुड डिलीवरी। क्या बेहतरीन गेंदबाजी है सूरत के ये सारे योद्धा, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ये पेट्रो सर्व इंटरनेशनल 45 रनों की आवश्यकता बचे हुए 37 गेंदों में, लेकिन सूरज ने इस गहरी अंधेरी रात में सूरज ने 3 डब्ल्यू हासिल किए, यानी कि 3 विकेट हासिल करते ही अपनी टीम के हौसले बुलंद कर चुके हैं। स्मार्ट चेन रॉयल्स दुबई की ये टीम है, लेकिन इसमें खेल रहे हैं हमारे सूरत के सभी प्रतिभाशाली खिलाड़ी। यस, सूरज गेंदबाजी कर रहे, इस मरतबा आगे रखा था गेंद को, हल्के हाथों से पुश किया गेंद को। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है। 14 रन 3 विकेटों के नुकसान पर पेट्रो सर्व इंटरनेशनल पीछा कर रही है 58 के लक्ष्य का। देखिए पवार, हमने अक्सर देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तौर को आप खोल के देखिए, शारजा का वो मुकाबला सभी को याद होगा जब पाकिस्तान ने भारत को 111 पे आउट किया था। जवाब में पाकिस्तान को 87 रन पे आउट किया था भारत ने। तो इस पूरे मुकाबले कभी बहुत इंटरेस्टेड होते हैं और हर कप में, हर टूर्नामेंट में एक मुकाबला ज़रूर ऐसा होता है जो कम स्कोर का रहे लेकिन फुल ऑफ इंटरटेनमेंट। खेल की शुरुआत होती हुई ओवर समाप्त हो चुके हैं। यहाँ पर 2 रन बने, 14 विकेटें गिरी है। 3 फरदीन काजी सस्ते में चले गए, बैक टू बैक उनके संदीप राठौड़ चले गए और प्रशांत अपना खाता भी नहीं खोल पाए। देखिए बहुत कुछ डिपेंड करता है रजत मुंडे पे, ही इज द की प्लेयर। बहुत ही ज़बरदस्त बैट्समैन है, 2 चौके लगा चुके हैं, लेकिन जो जाल बिछा है यहाँ पर स्मार्ट चेन रॉयल 11 में, वो जाल में अब तक फंसते जा रहे हैं पावर प्ले में बल्लेबाज। देखना है कि दूर वाले छोर से गेंदबाजी के लिए एक और क्या तब्दीली होती है या नहीं। दिवेश पटेल को बुलाया गया है नॉर्थ एंड से, सामना करेंगे उनका बैट्समैन जो अभी क्रीज में आए। टीम के कैप्टन है अंकुर सिंह, कमाल के खिलाड़ी अंकुर सिंह। भारत पाकिस्तान का वो ऐतिहासिक मुकाबला 10 PL शारजा में हुआ था, उसकी कप्तानी की थी भारत की तरफ से। द क्लास इज परमानेंट, द फॉर्म इज परमानेंट, दिस इज द परफेक्ट टाइम अंकुर सिंह थ्रू हिमसेल्फ। इस मरतबा कट कर दिया है, पीछे डीप पॉइंट रखा गया है, हालांकि शॉर्ट वाइड गेंद थी। 1 रन आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन 3 विकेट। जी, बहुत ज़रूरी रहेगा अंकुर सिंह और रजत मुंडे, इनकी जोड़ी ये बहुत क्रूशल है। 43 रनों की आवश्यकता, बचे हुए 35 गेंदों पर स्मार्ट चेन रॉयल्स दुबई की टीम ने आते ही, देखिए एक बहुत सालों पहले धमाल मूवी आई जिसमें कि एक डब्ल्यू ढूंढने के लिए कई सारे लोग पीछा कर रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से सूरज ने पिछले ओवर में 3 डब्ल्यू ढूंढते ही इस सेकेंड इनिंग्स की एक दमदार शुरुआत की है। देवेश पटेल सामने की ओर से आते हुए रजत मुंडे को बहुत ही खूबसूरती के साथ ऑफिस से रन कर दिया गया। दूसरे के लिए निकल पड़े बैट्समैन, बिटवीन द विकेट लाजवाब। देखिए रनिंग अभिजीत जो दूर रहता है, यस नो वेट, इन चीज़ों का मिश्रण चाहिए। और सबसे बड़ी बात अभिजीत सर ये है कि गेंद अगर सामने जाती है तो कॉल होना चाहिए स्ट्राइकर एंड का, गेंद पीछे जाती है विकेटों के तो नॉन स्ट्राइक के बैट्समैन का कॉल होना चाहिए। देवेश पटेल इस मरतबा बहुत ही कड़क शॉट है, मिसफील्ड हुआ है, गेंद निकल रही है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। 4 रन। आज रजत मुंडे के इरादे काफी खतरनाक लग रहे हैं, तीखे तेवर बल्लेबाजी में हम देख रहे हैं। ये देखिए ऑन द राइज खेला था, अपने आप को रूम दिया था, मिड ऑफ के खिलाड़ी से गलती हो गई और सूरज ही थे वहाँ पर, गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। 4 रन। इस चौके की मदद से रजत मुंडे बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, कुल स्कोर को पहुँचा दिया उन्होंने 21 रन।
मुकाबला चलता हुआ पेट्रो सर्विस इंटरनेशनल बनाम स्मार्ट चेन रॉयल 11 के बीच में। इस मरतबा हल्के हाथों से गेंद को खेला है डीप मिड विकेट पे। अगला मुकाबला हाई वोल्टेज मैच देखना ना भूलिए, जबकि 23 डिग्री सेल्सियस इस वक्त लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत में नजर आ रहा है। दीपक दाता प्रतिष्ठान ड्यूमरी बनाम वलसाड स्ट्राइकर। टॉस को जीता है दीपक दाता प्रतिष्ठान डोंबिवली ने और पहले आकाश तारेकर ने फील्डिंग करने का फैसला किया है। देवेश पटेल इस मरतबा गेंद को पुश किया, चुरा लिया है जो रन को। यहाँ 1 रन था, वहाँ 2 रन आते हुए इन 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है। पेट्रो सर्व इंटरनेशनल का 24 रन। विकेटों को हम देखें तो 3 विकेट। फरदीन काजी आज सस्ते में आउट हुए, लेकिन रजत मुंडे सर पे बर्फ रख के बल्लेबाजी कर रहे हैं। अकॉर्डिंग दी सिचुएशन नॉन पावर प्ले चलता हुआ शॉर्ट थर्मेन बैकवर्ड पॉइंट शॉर्ट पॉइंट लेग स्क्वायर लेग अंदर। इस मरतबा फ्लैश स्क्वायर कट किया है, खिलाड़ी हैं 1 रन आता हुआ। हालांकि शॉट में नहीं था दम, रन मिले कम। ओवर यहाँ पे समाप्त होने जा रहे 3 कुल स्कोर है 25, विकेटें गिरी है 3। अंकुर सिंह एक ऐसे कैप्टन है जो हमेशा अपनी टीम को लेकर चलते हैं। Absolutely, Ankur is a team man और that's the reason आज पेट्रोसर्व इंटरनेशनल के लिए इस इम्पोर्टेंट पोजीशन में बीच मैदान पर है। जीतना जानते हैं, जीतने की आदत है, लेकिन उनके सामने स्मार्ट चेन रॉयल्स दुबई की टीम एक कड़ा कंपटीशन खड़ा कर चुके हैं। दबाव में है पेट्रोसर्व इंटरनेशनल की टीम। बचे हुए 30 गेंदों पर 33 रनों की दरकार है। अभिजीत देखिए, आस्किंग रन रेट की हम बात करते हैं तो आस्किंग रन रेट इतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे अगर इस मैच को जीतना है स्मार्ट चेन रॉयल 11 को, तो रेगुलर इंटरवल में विकेटें लेनी होंगी। मौसम है मस्ताना, हर कोई है 10 PL का दीवाना। आइडियल क्रिकेट कंडीशन लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत में आप देख रहे हैं। इस मरतबा बहुत ही फाइन खेला है, गेंद को आने दिया था, देखने अंपायर का लेग बाय का इशारा। 1 रन बनता हुआ स्ट्राइक को रोटेट किया अंकुर सिंह ने रजत मुंडे को। कुल स्कोर 26 रन 3 विकेट। इसके बाद एक हाई वोल्टेज मैच देखना ना भूलिए। आकाश तारेकर, केतन मात्रे कहीं नाम है, मितेश दरबार, गेंदबाजी में कंटिन्यू रखा गया है। सूरज इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत कलाइयों का उपयोग टर्न कर दिया ऑन साइड में, दूर से खिलाड़ी पहुंचा है। 2 रन। दिस इज द स्मार्ट क्रिकेट, दिस इज द स्मार्ट क्रिकेट। टकिंग ऑन द ऑन साइड, फर्स्ट रन टेकन वेरी फास्ट, बिल्ड अप द प्रेशर ऑन आउटफील्डर एंड देन टेकन ए इजी कपल। 2 रन और आते हुए स्कोर में स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन 3 विकेट। यस, अंकुर सिंह एंड रजत मुंडे बहुत अच्छी एक संघर्षपूर्ण पारी अपने टीम के लिए खेल रही हैं। दिस इज द क्लास क्रिकेट। वंस मोर टैकिंग ऑन द ऑन साइड। इससे बढ़कर क्रिकेट नहीं हो सकता है। हल्के हाथों से, मैंने पहले ही कहा था, रजत मुंडे आज सर पे बर्फ रख के बल्लेबाजी कर रहे हैं। और बहुत बार देखा है जब ये खिलाड़ी नीचे सर रख के बल्लेबाजी करता है तो अपोजिशन को सर उठाने नहीं देता है। ये देख सकते हैं आप पेट्रोमन 10 PL के चेयरमैन आरिफ साहब को अपने तमाम साथियों के साथ बहुत खुश, तनवीर भाई, आसिफ भाई, फिर से बहुत ही खूबसूरत ड्राइव फ्रंट फुट पे आकर बिल्कुल आंखों के नीचे खेल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है अभिजीत के गेंद बल्ले के बीचों बीच टकरा रही। कुल स्कोर 30 रन। अब धीरे धीरे कठिनाइयां बढ़ती हुई यहाँ पर स्मार्ट चेन रॉयल 11 दुबई की। अच्छा पुश अंकुर सिंह का,
डीप मिड ऑफ पर 1 रन। बल्लेबाजी जब मेरिट पे होती है गेंद की तो स्ट्रोक भी जाजिबुल नजर निकलते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत, बिल्कुल फ्रंट फुट पे आकर आंखों के नीचे ड्राइव किया था अंकुर सिंह ने। 32 पर 3, 32 for 3 सूरज की ये गेंद। दोनों ही बैटर्स, लेफ्ट हैंडेड बैटर्स का माइंडसेट बिल्कुल क्लियर। यहाँ पर एक से भले दो, बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। जरूरी है, हर एक्स्ट्रा रन यहाँ पर फायदा दिलाएगा टीम पेट्रोसर्व इंटरनेशनल। बचे हुए 24 गेंदों पर रनों की आवश्यकता है 24, यानी कि RRR। अच्छी एक मूवी आई रिसेंटली, लेकिन क्रिकेट में ये RRR बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्वायर्ड रन रेट इज एग्जैक्टली 6, यानी कि रन बॉल गेम है। देखना होगा किस तरह से होगा ये रन चेज। इट्स टाइम फॉर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। आकार चेन अ प्राउड स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पार्टनर। थैंक यू। What a shot. What a shot. What a swag. Pepsi अब और भी ज्यादा रिफ्रेशिंग। ये स्ट्रैटेजिक टाइम आउट में स्ट्रैटेजी बनेगी। इस दरम्यान हमारे सभी स्पॉन्सर्स का हम दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। हमारे टाइटल स्पॉन्सर skyexchange.net। दिस इवेंट इज पावर्ड बाय पेट्रोमैन। NPL की इस दिलकश रात में मौसम बहुत ही आइडियल क्रिकेट कंडीशन, दूधिया रोशनी पूरे लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम को अपनी बाहों में समेटी हुई, हल्की हवा के झोंके चलते हुए सूरत में 4 ओवर में 24 रन बचाना। अभिजीत, मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा क्या टैक्टिक होना चाहिए यहाँ पर स्मार्ट चेन रॉयल 11? ये स्कूल बॉय क्रिकेट। अक्सर जब हम स्कूल में रहते हैं तब हमें कोचेस कहते हैं प्ले स्टेडी, प्ले अकॉर्डिंग टू द मेरिट, और एक एक रन निकाल लीजिए। सो यहाँ पर रन बॉल गेम है, रिस्क नहीं लेना है, रिस्क फ्री क्रिकेट खेलिए और जीत के करीब आइए। यही होगा क्लियर प्लान आउट फॉर टीम पेट्रोसर्व इंटरनेशनल। मरता क्या ना करता मुबिन मलिक को गेंदबाजी दी गई है विकेट लेने के लिए। सामना करेंगे उनका बैट्समैन अंकुर सिंह। दूर वाले छोर से आते हुए नॉर्थ एंड से इम्प्रोवाइज तरीके से खेलने की कोशिश। गेंद विकेट कीपर को भी बीट करती हुई पहुंची। अंपायर का देखना है क्या इशारा था, वह वाइट का इशारा। 1+1। ये तो मानो ऐसे जैसे आप गरीबी में आटा गीला कर रहे हो, आपको रन बचाने आप रन लुटा रहे हो। यार एक्साइटमेंट भरा समय जारी रहेगा 10PL सीजन 4 में, क्योंकि अगला मुकाबला है दीपक दादा प्रतिष्ठान और वलसाड स्ट्राइकर्स के बीच। दो दिग्गज टीमें, कई सारे टेनिस क्रिकेट के सितारे दीपक दादा प्रतिष्ठान और वलसाड स्ट्राइकर्स में खेलेंगे। दोस्तों कहीं भी मत जाइएगा, जो ऑनलाइन में दर्शक हमारे जुड़ चुके हैं, बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स हमें आ रहे हैं। यस, वी आर बैक इन इंडिया। सीजन 4 NPL का लास्ट मैच ऑफ दिस नाइट दीपक दादा प्रतिष्ठान एंड वलसाड स्ट्राइकर्स के बीच। बिल्कुल हाई वोल्टेज मुकाबला रहेगा। इस मरतबा कट किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, जगह दी थी वहां पर। गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। अभिजीत, आई थिंक so far one of the best inning from Rajat Munde. Absolutely, absolutely, undoubtedly, because हम भारतीय, हम सपनों का पीछा करने जानते हैं।
We are known for to chase our dreams. और रजत मुंडे और अंकुर सिंह ने बहुत अच्छी तरीके से इस रन्स को चेस किया है. This is the clever batting from Rajat Munde, big name in open cricket. This time another fine looking stroke, tucking on the onside. They go for one, looking for a second, no says by Ankur, and they settle for one. The score was up to 41 for the loss of 3 wickets. Petrosov International chasing a target of 58. You can see there, nicely played, tucked away on the onside. यस पेट्रोसव इंटरनेशनल पब्लिक की फेवरेट टीम है, लेकिन इसके बाद और एक मनचाही टीम जिसका मुकाबला होने जा रहा है ठीक इस रन चेस के बाद दीपक दादा प्रतिष्ठान एंड वलसाड स्ट्राइकर्स के बीच. प्लीज डू नॉट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड फॉर लाइव एक्शन. Mubin Malik this time soft end goes his back foot and tapping dash ball to backward of the point for a single. 42 for the loss of 3 wicket. 42 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 5वें ओवर का खेल चलता हुआ. एंड आई थिंक अभिजीत स्लोली बट श्योरली आई थिंक पेट्रो सर्व इंटरनेशनल मार्चिंग टुवर्ड्स टू द विक्ट्री. बहुत ही प्लानिंग गेम खेल रहे हैं रजत मुंडे. 14 गेंदों में 24 रन बनाए. इस मरतबा लीडिंग एज खेलना चाहते थे सामने. गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया, पॉइंट पे गई, थोड़ी देर हवा में थी, नुकसान कोई नहीं, 1 रन और आता हुआ. दैट वाज अ वेरी गुड बॉल बाय मूविन. जरूर कोशिश करना चाह रहे हैं कि यहाँ से इस पार्टनरशिप को तोड़ा जाए. 15 रनों की आवश्यकता है बचे हुए 20 गेंदों पर. बिल्कुल सरदर्द बनती भी है पार्टनरशिप, क्योंकि 20 गेंदों में केवल 15 रन चाहिए. मुबिन मलिक लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप. इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती के साथ स्लाइस किया. पहले पॉन्स पर गेंद पहुंची थी बैकवर्ड पॉइंट पे. 1 रन. स्कोर 44 रन 3 विकेटों के नुकसान पे पेट्रो सर्व इंटरनेशनल का. मुकाबला चलता हुआ. स्मार्ट चेंज रॉयल 11 दुबई बनाम पेट्रो सर्व इंटरनेशनल. 1 रन से स्कोर 44 रन 3 विकेट. रजत मुंडे क्वार्टर सेंचुरी बना के खेले. 15 गेंदों में 25 रन. अंकुर सिंह ने बनाए 12 रन. इस मरतबा घूम के मारा है. पीछे खिलाड़ी है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर. कारपेट के जरिए आउटफील्ड में पहुंची थी गेंद. 1 रन और आता हुआ. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन 3 विकेट. थोड़ा सा एक तरफा मुकाबला चल रहा है और दुनिया में 18 गेंदों में 13 रन चाहिए. दुनिया में कोई भी व्यक्ति, कोई भी शख्स एक तरफा प्यार भी नहीं चाहता है और एक तरफा हार भी नहीं चाहता है. देखते हैं कि किसकी होती है हार और किसकी होती है जय जयकार. मेरे साथी कमेंटेटर जो न केवल कमेंटेटर हैं बल्कि 10PL सीज़न सभी में उन्होंने कमेंट्री की. लेकिन सीज़न 4 जो सूरत में हो रहा है उसमें मैनेजमेंट का भी एक शोभा अंजाम दे रहे हैं. आपके साथ माइक्रोफोन पे अभिजीत पवार. यस लेकिन ऑन स्क्रीन जिनकी वजह से गली से स्टेडियम तक का ये कॉन्सेप्ट, ये गहरी सोच रखने वाले शख्सियत मिस्टर अब्दुल लतीफ़ खान यानी कि आरिफ भाई, इनको हम स्क्रीन पर देख रहे थे. अब कैलकुलेशन बहुत सिंपल है. 18 गेंदों पर 13 रनों की आवश्यकता है. यस आरिफ भाई के बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि अलग बात है कि चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं. और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कहीं ताज पड़े रहते. यस बिल्कुल. अब क्रिकेट की ओर बढ़ते हैं. पिछले ओवर में मुबिन ने कोशिश की थी कि विकेट चटकाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है. अब आ चुके हैं अभी पटेल. अभी आए हैं और उनका काम है कि 6 सही एक्यूरेट गेंद करे, वरना पेट्रोसव इंटरनेशनल इस रन चेज में और करीब आ जाएगी उस फिनिश लाइन के नजदीक. 45 पर 3. 5 ओवर के बाद छठी ओवर की शुरुआत करते हुए अभी पटेल.
ओ बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, हाउ अबाउट इट, अपील विकेटों के पीछे से, लेकिन यहाँ अंपायर ने पूरी तरह से खारिज कर दिया और रिव्यू मांगा है टीम स्मार्ट चेन रॉयल्स दुबई ने। इस बीच हमारे सभी प्राउड स्पॉन्सर्स का हम दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं और ऑफिशियल पार्टनर्स डिजिबिट्स, स्मार्ट चेन रॉयल्स दुबई, Socos.io, beverage partner Pepsi, official kidding partner UYP, Unleash Your Potential, and venue partner Lal Bhai Contractor Stadium, सूरत डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी प्राउड पार्टनर्स का। इट इज अ नॉट आउट, बिल्कुल सेफ हैं रजत मुंडे। Yes, Abhijit, I think there is a very easy equation in front of Petroserv International because 17 balls and 12 runs. 17 गेंदों में 12 रन चाहिए। यहाँ 17 गेंदों में आवश्यकता है 12 रनों की। एक बहुत ही अच्छी नपीतुली अनुशासन भरी बॉलिंग करना अभी पटेल इनके लिए बहुत जरूरी। शुरुआत अच्छी की है लेकिन लेग बाइज के रूप में उस रन को रोक नहीं पाए थे। आने वाली ये 5 गेंदे टीम स्मार्ट चेन रॉयल्स के लिए बहुत ही अहम होगी। स्ट्राइक पर हैं मैच विनिंग प्लेयर अंकुर। स्विच हिट, ऐसे समय पर ये रिस्क लेना बहुत ही डेंजर रहेगा पेट्रोसर्व इंटरनेशनल के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, जब घी सीधी उंगली से निकल रहा हो तो टेढ़ा नहीं किया जा सकता है। स्विच हिट करना चाहते थे। ये देखिए क्या टेलीकास्ट, वंडरफुल टेलीकास्ट, 22 कैमरों से पहली मर्तबा इतिहास। इस मर्तबा ग्लांस करने की कोशिश, क्या विकेट कीपिंग करने की कोशिश की थी, हालांकि अपने आप को झोंक दिया था वहां पर। यहाँ पर तारीफ करनी होगी विकेट कीपर अनिल, रन बचाए। ऐसे समय पर आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट करना है, एक ट्राई करना है कि रन किस तरह से और बचाए जाए, विकेट किस तरह से लिए जाए। अब 10 रनों की दरकार है बचे हुए 11 गेंदों पर, माफी चाहेंगे 11 रनों की आवश्यकता 15 गेंदों में। अच्छी बॉलिंग करें अभी पटेल, क्योंकि उन्हें पता है अभी नहीं तो कभी नहीं। मैच को और क्लोज कर रहे हैं। कैच का मौका इस समय, और मौका दोनों हाथों से लिया है। दैट इज अ मच नीडेड ब्रेक। नेहल ने बहुत अच्छा कैच लिया है। स्नेहल गेट्स a brilliant catch and that's an important catch and wicket. रजत मुंडे के आउट होने के बाद अब थोड़ी सी खुशी की लहर। बढ़िया बल्लेबाजी के बाद लौटे थे डगआउट में, उनका बेहतरीन स्वागत होता हुआ। व्हाट अमेजिंग इनक्रेडिबल इनिंग प्लेड बाय रजत मुंडे। 14 गेंदों में 11 रन चाहिए। अभी भी मैच में बहुत कुछ बचा है। क्रिकेट कॉल 13 गेंदों में 11 रन चाहिए। क्रिकेट कॉल ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी गेम। यस जरूर, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज। कृष्णा गवली, देखिए दैट्स द रीजन उनको यहाँ सुरक्षित रखा गया था कि अगर कभी भी अगर स्ट्रेंज सिचुएशन होती है पेट्रोसर्व इंटरनेशनल के लिए तो कृष्णा है तो मुमकिन है। अब थोड़ा सा दबाव बढ़ता हुआ अंकुर एंड कृष्णा पर। 13 गेंदों पर 11 रनों की जरूरत। इसके बाद एक और महामुकाबला आज के इस रात का दीपक दादा प्रतिष्ठान एंड वलसाड स्ट्राइकर्स के बीच। हल्के हाथों से पुश किया, जोखिम बड़ा रन पूरा किया, निकलती हुई
अगर गेंद स्टंप पे टकराती तो खतरे में आ सकते थे बैट्समैन। ये देखिए किस तरह से कृष्णा गौली ने स्टंप्स को कवर किया, हल्के हाथों से पुश किया। ओ माय गॉड, अगर गेंद स्टंप पे टकराती तो जरूर अंपायर तीसरे अंपायर की तरफ जाते, लेकिन कहा जाता है अभिजीत की क्रिकेट में अगर और मगर को जगह नहीं, क्रिकेट में जर आणि तर नहीं चालत, किंतु परंतु का तो सवाल ही नहीं उठता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये फिर से देखते हैं, क्लोज व्यू से दिखाया जा रहा है। दिस इज द हाई क्वालिटी टेलीकास्ट। टेनिस क्रिकेट का ये कीर्तिमान है कि 22 कैमरों से 10 PL दिखाया जा रहा है, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ टेनिस क्रिकेट। एंड ऑल्सो एक बहुत अच्छा आकर्षण रहा है SkyExchange.net 10 PL सीजन 4 में कि जिमी कैमरा यूज किया गया है, एंड दैट इज वे बियॉन्ड थिंकिंग। जिस तरह से 10 PL कमेटी की सोच रही है कुछ ना कुछ बेहतर, कुछ ना कुछ नया, इंडिया में आए हैं पहली बार, लेकिन ये सीजन सबसे बेस्ट है, सीजन 4। 10 रनों की आवश्यकता, बचे हुए 12 गेंदों पर, और अब बॉलिंग के लिए तैयार है मुबीन। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर कट, लेकिन डीप पॉइंट पे खिलाड़ी 1 रन। अभी भी मैच में काफी जान बची है, और वो जो कहते हैं सांस है तो आस है। 11 गेंदे 9 रन। अंकुर सिंह थोड़ा रुक कर खेल रहे हैं, अब तक उन्होंने 10 गेंदों का सामना किया है, 9 रन बनाए, लेकिन वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर इन ओपन टेनिस क्रिकेट, और साथ ही साथ बहुत ही कूल कैप्टन रहे हैं। अंकुर सिंह सामना कर रहे हैं मुबीन मलक का। बहुत खूबसूरत बॉलिंग एक्शन है। अंकुर को इस मरतबा फिर फ्लैश स्क्वायर कट किया है, थोड़ा गेंद बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट जा रही है, थोड़ी सी स्लॉपी वर्क रहा, 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। And the reason for that sloppy work is because the dew is everywhere on the field. So यहाँ पर एक चैलेंज सिचुएशन है, टीम जो फील्डिंग कर रही है, दौड़ते वक्त आपको सुरक्षित रखना अपने आप को। सो अब रनों का ये सिलसिला, 7 की आवश्यकता, बचे हुए 10 गेंदों पर। मुबीन मलिक सामने की ओर से आते हुए, ओह बढ़िया गेंद, पूरी तरह से छटाया था, खोल के रख दिया था बैट्समैन अंकुर सिंह को। फ्रंट फुट पे शॉट खेलना चाहते थे, इंटरेस्टिंग रहेगा रिप्ले में देखना, पूरी तरह से खुल गए थे अंकुर। आइए देखते हैं, ये देखिए बिल्कुल इंटरनेशनल क्लास का टेलीकास्ट। लवली बॉल इंडीड, कवर ऑन द राइज खेलने की कोशिश की थी दूर से अंकुर सिंह ने, कुछ कान मंत्र दिए वहां पे कृष्णा गौली ने अंकुर सिंह को। 9 गेंदे 7 रन, लेकिन बहुत ही पॉजिटिव सोच है यहाँ पर स्मार्ट चेन रॉयल की। जूझ रहे, लड़ रहे हैं, हुक कर दिया है, गेंद जा रही है, बहुत ही फाइन, 4 रनों के लिए। बहुत ही खराब गेंद, छोटी गेंद बड़ी नसीहत, हाफ ट्रैकर थी, बहुत समय था अंकुर के पास, क्रीज में पीछे चले गए, हुक किया, 4 रन। देखिए चारों एंगल से शॉट दिखाया गया। एक ज़माना था जब चैनल 9 ऑस्ट्रेलिया का टेलीकास्ट आता था, 20 सेकंड में चारों एंगल से दिखाया जाता था, उसी तरह से इसको दिखाया गया। मुबीन मलिक, अंकुर को बढ़िया वापसी, गेंद थोड़ी नीची रही थी और गेंद निकल गई है बाउंड्री लाइन के बाहर। बैट्समैन बीट, विकेट कीपर बीट, और इस मैच को जीत लिया है पेट्रो सर्व इंटरनेशनल ने। इस मैच को जीत लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन पेट्रो सर्व इंटरनेशनल। 8 लाख स्मार्ट चेन रॉयल 11।
आरिफ खान साहब को दिखाया जा रहा है, 10 PL के चेयरपर्सन। आइए इस मैच के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ हम बढ़ें और इस प्रेजेंटेशन सेरेमनी को करने के लिए ओसम हमारे साथी कमेंटेटर Check 1 रहमत 2 3. हुसैन ओसम Check 1 2 3. और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी का नाम है जिनकी हर तरफ चर्चा हो रही है, 12 रन देकर 2 विकेट लिए और आखिर में नट आउट रहकर अपनी टीम को जिताया। नाम है टीम के कैप्टन पेट्रो सर्व इंटरनेशनल के कैप्टन अंकुर सिंह। अंकुर सिंह इज द मैन ऑफ द मैच। चलते हैं पोस्ट मैच check 1 2 3. सेरेमनी की तरफ ओसम के पास। इट्स ओवर टू यू ओसम। I requested Sumit Singh from Eminent Hyundai to please join us here for the presentation party. Sumit Singh, could you please join us here for the presentation party? Okay, I would like to invite Petro Serve International to please come forward and join us here for the presentation party. The chief guest who will be joining us here will be Mr. Aslam, who is the talk behind this entire event to happen. असलम यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस मैच के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए। All right.